السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ ہماری کلاس کافی لیٹ ہو گئی، ٹیکنیکل ایشوز تھے، کچھ وجہ ہو گئی تھی، میری بھی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں تھی، اس وقت بھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اور میرے ایگزامس تھے، لہٰذا اس وجہ کے تحت آپ کی کلاس بہت زیادہ لیٹ ہوئی۔ شروع کرتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ کرائے اور آپ کو اچھے انداز سے انگلش سیکھنے کی توفیق دے، اور مجھے اپنا صحیح وقت آپ کو دینے کی توفیق دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انگلش ایجوکیشن ورڈ کیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سارے نیو اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے دیکھیں۔ ایجوکیشن ورڈ ایک ایسا آن لائن ادارہ بن گیا ہے الحمدللہ کہ جو آپ کو بی ایس ای کے، بی آئی ای کے، ایم کیٹ، ای کیٹ، بی اے، بی کام، بی ایس سی کے متعلق نالج، آپ کی ایجوکیشن سے متعلق نیوز، آپ کو ایم کیٹ، ای کیٹ کی فری آف کاسٹ الحمدللہ پریپریشن، اس کے نوٹس پرووائڈ کرنا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن ورلڈ کا ایک اور پارٹ ہے الحمدللہ جس کو ایجوکیشن ورلڈ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ ایجوکیشن ورلڈ آرگنائزیشن از ویلفیئر، جو ویلفیئر کرتی ہے، فری ایجوکیشن، فری چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم نے لاک ڈاؤن میں تقریباً اپروکسیمیٹ 18 to 20 گھرس پہ الحمدللہ ہم نے راشن کی فراہمی کر رہی تھی، جس کے اندر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، جس کی چیئر پرسن میڈم سعدیہ بابانی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہوں اس کا چیئرمین۔ اور ہماری ایجوکیشن ورلڈ کا جو تیسرا پارٹ ہے، اس کا پارٹ کا نام ہے ایجوکیشن ورلڈ آن لائن قرآن اکیڈمی، جو الحمدللہ علماء کرام کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ علماء کرام کی زیر نگرانی آپ کے لیے فری آف کاسٹ اسلامک کورسز، پیڈ اسلامک کورسز، ٹھیک ہے، سرٹیفائڈ اسلامک کورسز ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس سے آپ کو آپ کی دین بھی آپ سدھار سکتے ہیں، اپنا دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایجوکیشن ورلڈ کی ہماری چھٹی کلاس آج ہم لینے جا رہے ہیں۔ مختصر سی کلاس ہے، زیادہ بڑی کلاس نہیں ہے، یہ کلاس ہے ورب کی، ٹھیک ہے۔ 5 کلاسیں الحمدللہ ہو چکی ہیں، چھٹی کلاس ہے۔ میں محمد زید، سر زید آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ورب کیا ہے؟ A verb is a word or a combination of words that indicate an action or state of being or condition. A verb is a part of a sentence that tell us what the subject perform. Verb are the heart of English sentences. ورب ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، ورب ایک لفظ ہے، ایک کمبینیشن ہے ورڈ کا، ایک کمبینیشن ہے ایک الفاظ کا، ایک ملاپ ہے الفاظ کا، جو انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کس کی جانب؟ ایکشن کی جانب۔ ایکشن کہتے ہیں کام کو، ورک ہے ہمارا، اس کے معنی ہوتے ہیں کام، فعل، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے ہماری فیلنگز کو، ٹھیک ہے۔ ورک ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز سمجھ لیں، ایک امپورٹنٹ بات سمجھ لیں، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری پارٹس آف اسپیچ کا، ٹھیک ہے۔ ورب کو ہارٹ آف انگلش سینٹینس بھی کہا جاتا ہے، کلیئر ہے۔ پیچھے 2 ڈیفینیشنز اور لکھی ہوئی ہے، انہی کو ہی شارٹ کر کے لکھا گیا ہے کہ ورب از اے ورڈ دیٹ شو ایز این ایکشن۔ ورب ایک الفاظ ہے جو شو کرتا ہے ایکشن کو، جو شو کرتا ہے کام کو۔ نیچے جو تیسری ایگزامپل ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس شو ہو رہی ہے، ورب کین آلسو شو اسٹیٹ۔ ورب فیلنگس کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے ایگزامپلس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی ڈرائیوز آ بس، علی ڈرائیو کر رہا ہے بس کو، ٹھیک ہے، علی ایک بس چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب علی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ڈرائیوز کیا ہے؟ ورب ہے، کام کر رہا ہے نا۔ اب بس، ٹھیک ہے،
बस क्या है, ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाए, मफूल है। अली मुब्तदा है, सब्जेक्ट को मुब्तदा कहा जाता है, ठीक है। नीचे जिस एग्जाम्पल है अली वाली एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस से है। नीचे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है नंबर सेकंड, वो है सना इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी। सना एक कप कॉफी पी रही है, ठीक है। सना एक कप कॉफी पी रही है। अब सना, सना क्या है, सब्जेक्ट है, मुब्तदा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में दो चीजें ऐसी हैं जो वर्ब है, अब वो क्या है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अ कप ऑफ कॉफी, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये कंटिन्यूस यानी कि ये काम अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है वी प्लेड हॉकी। वी प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेले, ठीक है। माजी का टेंस है, खेलेंगे, खेले, ठीक है, ये माजी का टेंस है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अली ड्राइव्स अ बस, देखिए अली सब्जेक्ट है, मैंने अभी आपको समझा दिया, सब्जेक्ट यानी कि मुब्तदा। ड्राइव क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सना इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी, अब देखें इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है जो वर्ब को मदद करे कंप्लीट होने में। ये एक हमारी टाइप्स कहलाती है वर्ब की, ठीक है। आगे चलेंगे इंशाल्लाह समझ में आता रहेगा। ड्रिंकिंग क्या है, वर्ब है भाई। देखिए चाय पी रही है ना, कॉफी पी रही है ना। अब मैं लिखूं सना इज ड्रिंकिंग, भाई क्या ड्रिंक कर रही है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन वर्ब कर लिया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ड्रिंकिंग कर लिया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। कॉफी ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ हो तो बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, मेरे मुंह में सिर्फ छाले हो रहे, तो लिहाजा मुझसे बोला नहीं जा रहा है, हो सकता है मेरी आवाज कट भी हो रही हो, मुझे बताइएगा, दोबारा वीडियो बना दूंगा। वी प्लेड हॉकी, ठीक है। प्लेड क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए मेन वर्ब क्या है, आपके सामने नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ड्राइव्स, ड्रिंकिंग, प्लेड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये है इज, वाज, वर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम टेंसेस जब हम करने जाएंगे एडवांस लेवल पे, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको क्लियर होगा, ठीक है। आइए आगे चलते। अब एजुकेशन वर्ल्ड में हम दूसरी इसकी एग्जाम्पल समझाएंगे और डेफिनेशन समझाएंगे। डेफिनेशन क्या है, वर्ब कैन आल्सो शो स्टेट, वर्ब फीलिंग्स को भी जाहिर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, आइए नीचे है, अली इज टाइड। अब देखें वर्ब फीलिंग को जाहिर कर रहा है ना। अब देखें टाइड कोई काम नहीं है, टाइड कहते हैं थकने को, ठीक है। टाइड इज नॉट एन एक्शन, लेकिन ये क्या है, ये एक स्टेट है, ये एक फीलिंग है भाई, आपकी कंडीशन है, ठीक है। जो आप फील कर रहे हैं ये वो है, ठीक है। अब इसमें वर्ब है क्या, इसमें वर्ब है इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जिस जगह पर आपके पास वर्ब शो नहीं हो रहा होता, ठीक है, उस जगह पर ये मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। आइए दूसरा करते हैं, सना वॉज एंग्री। अब एंग्री इज अ स्टेट, गुस्सा है भाई, सना गुस्से में है, ठीक है। किस चीज पे गुस्से पर है, काम तो नहीं पता, चीज वर्ब तो नहीं पता, तो इधर क्या है, वॉज इज अ मेन वर्ब। ही फील इल, इल्स इज अ स्टेट, यानी कि वो अपनी तबीयत नासाज समझ रहा है, जस्ट लाइक अमी, ठीक है। ही फील इल, वो अपनी तबीयत नासाज समझ रहा है, इल इज अ स्टेट, ठीक है। अब जब इल स्टेट है ना, तो इसकी वर्ब क्या है, वर्ब है इसका फील, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसकी टाइप्स, दो तरीके की टाइप्स, तीन तरीके की इसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी हमने समझ लिया, अभी इसकी डेफिनेशन दोबारा समझ लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है अली इज ईटिंग एन एप्पल। अली एक एप्पल खा रहा है। अब मैं बोलूं अली इज ईटिंग, क्या खा रहा है, नहीं पता, तो लिहाजा एप्पल ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब मुकम्मल करने के लिए, बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लाना नेसेसरी है। आइए आगे चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को बिल्कुल उलट कर दीजिए, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी,
इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। अब क्या है, देखिए सना इज स्माइलिंग, इसकी एग्जांपल है सना इज स्माइलिंग, सना मुस्कुरा रही है। अब सना किस बात के लिए मुस्कुरा रही है आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन सना मुस्कुरा रही है तो इस क्या है, इस इसका मेन वर्ब है। लेकिन स्माइलिंग क्या है, स्माइलिंग के आगे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्माइलिंग एक वर्ब, आप काम नहीं कर रही ना, किस वजह के तहत मुस्कुरा रही, वो वजह नहीं पता चल रही हमें, तो लिहाजा ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, किस चीज पे मुस्कुरा रही है, ठीक है, उसका मफूल क्या है हमें नहीं पता चल रहा, तो लिहाजा ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी दूसरी एग्जाम्पल पीछे देखिए हुई, अली वॉज वॉकिंग, ठीक है, अब अली चल रहा है, भाई क्यों चल रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है। आइए लास्ट है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, वो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पर समझ लें, जिस वर्ब के जरिए वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों और जमानों को बताया जाता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि जिसकी मदद से मुख्तलिफ, आप उसकी ज़माने बता सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लें की मदद से आप मुख्तलिफ ज़माने बता सकते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह आगे हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें सेहत दे, मुझे भी सेहत दे, आपको भी अल्लाह पाक सेहत दे, ताकि हम अपनी क्लास को अच्छे अंदाज से कंप्लीट कर सकें। आपके लिए गुड न्यूज़ है, इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन वर्ल्ड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर इज़ कमिंग सून। एडमिशन ओपन जल्द से जल्द हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपकी जो फीस आप एजुकेशन वर्ल्ड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को देंगे, उसकी आपको वाउचर भी पहुंचाया जाएगा, फीस भी पहुंचाई जाएगी, आपको क्लास आपकी ज़ूम ऐप पर होगी इंशाअल्लाह। उसकी जल्द डिटेल आपको एक वीडियो की सूरत में, वाउचर की सूरत में तमाम डिटेल इंशाअल्लाह ताला आपको हम फेसबुक पेज पर अवेल कर देंगे। कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ आप दोबारा समझना चाहते हो, इस तरह इस दफ़ा मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने आपको सिर्फ ज़ुबानी समझा दी, अगर आप डेफिनेशन के साथ आप की वीडियो चाह रहे हैं तो लिहाजा आप हमें मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह इसी वीडियो को हम कंप्लीट आपको और ज़्यादा अच्छे अंदाज से सेंड कर देंगे, और उस आप हस्ब मुमकिन जितना हो सका हम आपको इसको दोबारा से समझा भी देंगे। पर लिहाजा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाहर जाइए, सेफ्टी प्रिकॉशंस कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हमारी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।